کراچی میں منہدم عمارت میں مزید 4 لاشیں برآمد، مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی، 6 سے 7 افراد تاحال ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن آج چوتھے روز مزید تیز کر دیا گیا، پاک فوج، رینجرز اور پولیس سمیت ریسکیو ٹیمز شریک۔ ادھر مقدمے میں نامزد عمارت کا مالک جاوید تاحال گرفتار نہ ہو سکا، متاثرین کی نم آنکھوں کے ساتھ وزیر اعظم سے مدد کی اپیل، بلڈر کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ کرپشن کو پکڑ لیں، یہاں ہے نا گلیوں میں دیکھے عمارتیں گرنے کے بعد کیوں، عمارتیں گرنے سے پہلے کیوں نہیں عمارتیں گرنے سے پہلے ابھی بھی چیک کریں، سب کچھ جائیں خالی کروائیں اور بالکل توڑوائیں اس کو۔ ملک بھر میں بارشیں آئیں، تباہی کا پیغام لائیں، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ خیبر، سوابی اور مردان میں 5 بچوں سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ عیسیٰ خیل میں طوفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی صورتحال بگڑنے لگی۔ جہلم میں بارش کے باعث سڑکیں تالاب میں تبدیل۔ ادھر مری، اسکردو سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری، ارندو، گلتری اور شغر تھنگ کا زمینی راستہ بحال نہ ہو سکا۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات۔ پاک افغان چمن بارڈر 7ویں روز بھی بند۔ پاک ایران سرحد پر کل جزوی بحال کی گئی 2 طرفہ تجارت، آج پھر روک دی گئی۔ آنے والی گاڑیوں پر سپرے اور ڈرائیورز کی سکریننگ کی گئی۔ 200 سے زائد زائرین بھی واپس پہنچے۔ تفتان قرنطینہ سینٹر منتقل، تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ پہلے سے موجود 2000 سے زائد زائرین کو آج کوئٹہ روانہ کیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر تقریبات کا انعقاد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ویمن ڈے کی مناسبت سے لاہور میں سائیکل ریلی، 300 مرد و خواتین سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ آج کا دن منانے کا مقصد خواتین کو جینے، آگے بڑھنے اور انسانیت کی خدمت کے لیے محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہے۔ سرچ انجن گوگل کا بھی خواتین کو زبردست خراج تحسین اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا۔ ہماری خواتین ہر شعبے میں قومی اور عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ مزید کہا کہ یقین ہے پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کا عمل خواتین کو برابر کے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہماری خواتین محفوظ اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اقوام متحدہ امن مشنز میں پاکستانی خواتین کا کئی سال سے کلیدی کردار۔ پاکستان اقوام متحدہ امن مشنز میں خواتین انگیجمنٹ ٹیمز تعینات کرنے والا پہلا اہم ملک بنا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستانی خواتین کو دیگر ممالک کے لیے کلیدی مثال قرار دیا۔ کانگو میں پاکستانی خواتین امن فوجیوں کا 15 رکنی دستہ بہترین کارکردگی پر تمغے حاصل کر چکا ہے۔ لاہور کے مردہ خانے یا شہر خاموشاں، صوبائی دارالحکومت کے اسپتالوں میں بڑی تعداد میں لاشیں جمع۔ مردہ خانوں میں 2 ماہ کے دوران 23 لاشیں لائی گئیں۔ پوسٹ مارٹم کے باوجود تاحال لاشوں کی تدفین نہ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے لاشیں سپرد خاک کرنے کے لیے ملنے والی رقم مبینہ طور پر خرد برد کر لی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار خیبر پختونخوا کی حسین وادی سوات کے میجک ماؤنٹین پر سنو میراتھن ریس، ملک بھر سے 115 ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی بھی بھرپور شرکت۔ 21 کلومیٹر ریس میں سہیل پہلی، ابرار دوسری اور فدا محمد تیسری پوزیشن پر رہے۔ روس میں آئس کراس کے دلچسپ مقابلے، مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रिया के लूका डालगॉफ ने मैदान मारा। खवातीन के मुकाबलों में कैमरॉन नाश ने फातेह करार पाई। मौसम की बात करें तो एबटाबाद में 5वें रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गलियात में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मजीद जानेंगे आदिल अब्बासी से। आदिल, बताइए कैसा मौसम है? जी, बात की जाए मौसम की तो आज 5वें रोज भी एबटाबाद शहर और मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी, यूबिया में जो है वो इस वक्त तक 2 फुट तक जो है वो बर्फबारी पड़ चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाद जो राब्ता सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई हैं। 100 से ज़ायद देहात का राब्ता जो है वो मुनक़ता है, जबकि लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। रात के 2 मकामात तोयदाबाद और पूजा गली के मुकाम पर आने वाली लैंड स्लाइडिंग से एबटाबाद मरी रोड जो है वो एक दफ़ा फिर बंद हो गई है। PKHA और गलियात अथॉरिटी की बड़ी मशीनरी जो है वो सड़कों को क्लियर करने में मसरूफ़ है। तमाम वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सड़कों को खोलने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो लिंक्स रोड हैं उनसे बर्फ हटाने का काम जो है वो ताल शुरू नहीं हो चुका है। नथिया गली, बकोट रोड, नथिया गली, ठंडियानी रोड, अयूबिया खानसपुर रोड, ताजवाल, ज़रत मासूम रोड, रसफरगढ़ी, लोरा रोड जो है उनसे बर्फ हटाने का कोई काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है, जबकि लिंक रोड पर भी शदीद जो है वो लैंड स्लाइडिंग आई है। जी ठीक है आदिल, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे, दाऊद वर्दक हमारे साथ मौजूद हैं। जी दाऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, और दीरबाला में गुज़श्ता 24 घंटे से यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे बारिश, जबकि जो मज़ाफ़ाती और सियाहती मकामात है लवारी टाप, कुमराट, बिन शाही, डोगदरा, तो वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बारिश और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हुआ है। साथ साथ सियाहती मकामात की अगर बात की जाए तो इस वक्त कुमराट जो है मुल्क भर से यहाँ पे सयाह आए हैं, जो कि यहाँ की बर्फीली मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे ख़वातीन इस बर्फबारी के मौसम में खूब हला गुला कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी ठीक है दाऊद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मलिका कौसार मरी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो इस वक्त रुका है कुछ देर के लिए। गुज़श्ता रात से अब तक 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च के महीने में पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। मरी मॉल रोड पर सयाहों की मौज मस्तियां जारी हैं। मौसम कैसा है, सयाहों का क्या कहना है, जानेंगे मरियम मलिक से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आसमान पर गहरे बादल हैं, बरसती बूंदें हैं, ठंडी हवाएं, छुट्टी का रोज़, और अगर ऐसे में मरी का रुख ना किया जाए तो छुट्टी का फ़ायदा ही नहीं है। गुज़िश्ता दिनों बारिश के बाद जो है शहर में जहां सर्दी ज़्यादा हो गई थी और जाती सर्दी वापस आ गई थी, वहीं मलिका कौसार में बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला रात गए से शुरू हुआ था, जो अब सुबह जो है वो हल्का हल्का दोबारा से शुरू हो चुका है। अब तक जो है तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फबारी है वो हो चुकी है, जिसके बाद मलिका कौसार में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। रात जो बर्फ पड़ी थी उसके बाद हर मंजर इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है, और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मलिका कौसार पहुँच चुकी है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मलिका कौसार हो, बारिश का मौसम हो और सर्दी हो, और लाहौर और कराची और गुजरांवाला ना पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी ज़्यादातर जो सयाह हैं वो लाहौर, कराची और फैसलाबाद से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और मरी के इस मौसम से काफ़ी हद तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी की माल रोड पर, जो इंतहाई रश वाली बिजी रोड समझी जाती है, तस्वुर की जाती है। GPO चौक भी यहाँ पर ही मौजूद है। शहरी यहाँ पर इस तारीखी बिल्डिंग के पास आना पसंद करते हैं। इस वक्त हल्की बारिश और हल्की हल्की स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी हद तक मौसम अच्छा हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। सर्दी अगरचे कि इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल जब होती है तो सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज छुट्टी का दिन भी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस हसीन मौसम के साथ साथ
मरी के इस मौसम को एंजॉय करी है, क्योंकि यहाँ के रहायशियों के मुताबिक जो है मरी में पहली बार मार्च के महीने में इतनी हैवी स्नोफॉल देखने में आ रही है और इस हसीन मौसम से शहरी जो है काफ़ी हद तक लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ हमारे आने से पहुँचने से पहले भी, माल रोड पर पहुँचने से पहले भी जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी थी, क्योंकि मरी का ऐसा मौसम हो, नज़ारा ऐसा हसीन हो तो शहरी जो है वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इस वक्त भी आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं शहरी काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हैं और तमाम सड़कें जो हैं वो इस वक्त बर्फ से ढक चुकी हैं और उनको हटाने के लिए जो हैवी मशीनरी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि जो है कोई परेशानी का सामना है। सयाह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मरियम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शरकपुर शरीफ में कायम दोनों यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमती अहकामात के बाद ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के 15 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज से शरकपुर शरीफ के अवाम महरूम हैं। इस हवाले से दिखाते हैं आपको कुर्बान अली शरकपुरी की ये रिपोर्ट। साबिका पंजाब हुकूमत ने शरकपुर शरीफ शहर में अवाम की सहूलत के लिए 2 यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए, तहाँ मौजूदा हुकूमत ने दोनों यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से शरकपुर के शहरी वजीर आजम के रिलीफ पैकेज से महरूम हो गए। स्टोर्स की बंदिश से शरकपुर के मकीन सीखपा हैं। हमारे इलाके में दोबारा यूटिलिटी स्टोर खुलवाएं ताकि हम लोग भी इस पैकेज से फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर आज़म के पैकेज का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इलाके में 2 यूटिलिटी स्टोर थे, दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। हमारे इलाके में 2 यूटिलिटी स्टोर थे जहाँ से हम सस्ती अशिया खरीदते होते थे और अब हम सस्ती अशिया खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते, सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि शरकपुर शरीफ में दोबारा यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएं ताकि अवाम वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा कर सकें। कुर्बान अली, 92 न्यूज़, शरकपुर शरीफ। ईस्ट लंदन में लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स बरतानिया की जानिब से बाहमी रवादारी और हम आहंगी पैदा करने के लिए मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें आला सरकारी ऑफिसर्स के साथ साथ कम्युनिटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स के चेयरमैन बशीर चौधरी की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर अल्फर्ड में तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने कहा, बरतानिया एक कसीर और सकाफती मुल्क है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। यहाँ रहने वाले अपने मजहबी और सकाफती त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। चेयरमैन लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स बशीर चौधरी ने कहा, हम सबको नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करके मिलजुल कर रहना होगा। नफरत की फ़ज़ा उसको दूर करें और मिलकर जो भी इख्तलाफात हैं वो दूर करें। लड़ाइयों से झगड़े हल नहीं होते, लड़ाइयों से यही होता है कि तबाही होती है, लोग बेघर होते हैं, रेफ्यूजी बनते हैं, फिर वो उनको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है। उस वजह से फिर और लोग दूसरे मुल्कों वाले हैं, एक और चीज़ पैदा होती है नफ़रत वाली। तो कोशिश ये होनी चाहिए सियासी लोगों को भी, मजहबी लीडरों को भी मिल के काम करें। मौलाना हबीबुर रहमान ने कहा, आज की तकरीब में इस्लाम का हकीकी फ़लसफ़ा पेश किया गया। इस्लाम अमन का दीन है और ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भलाई चाहता है। एक रूफ के नीचे इन्होंने तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया और इस्लाम का मैसेज जो है वो उजागर किया। मैं समझता हूँ कि आज शाम का ये इवेंट जो है बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग इकट्ठे हो सके, मुख्तलिफ कल्चर से लोग इकट्ठे हो सके और हम सब एक कॉमन कॉज के लिए मिलकर काम कर सकें। Members of this borough, Muslims, Christians and Jews all together, and of course from many other ethnicities and religions. Every faith in Ilford represented here tonight, and that's very, very powerful. You know, in a world that is often tearing itself apart with religious differences and divides, attacking each other even, you know, some terrible things happening in the world at the moment. Tonight we can show what is the very best of Britain. I live here in the east side of London and I'm very happy to be here at this particular dinner, which is run by the League of British Muslims. And for many years I've lived in this borough and we promote good relations between the Jewish community, there are a large number of Jews living here, Christians and most importantly the Muslim community. तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैम टेरी, माइक गिब्स, पुलिस और रॉयल फोर्सेस के आला अफसरान भी शरीक हुए। बरतानिया एक कसीर सकाफती माशरा है, यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग खुशी के त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर गुजारते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।
कॉमेडी किंग और लेजेंड अदाकार अमानुल्लाह की वफात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रंजीदा हैं। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए यूसुफ तल्लत, अदाकारा अफशान ज़ैबी, प्रोड्यूसर फराज अहमद और सुहेल अहमद ने अमानुल्लाह की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अमान। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो लोग थे जो दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाते थे अपने गम भुला के, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनकी अगली मंजिलें आसान करें। अमानुल्लाह खान साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनके जो प्यार करने वाले हैं उनको सब्र जमील अता करें। उनके जाने का बहुत गम है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी कमी तो बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, मगर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमने भी जाना है, सब ने जाना है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह साहब जो है ना वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे। जब भी वो लंदन में आए उन्होंने प्रोग्राम किया है तो लोग यकीन करें उनको बहुत लाइक करते थे। अमानुल्लाह साहब के बारे में तो मैं एक ही बात कहूँगा कि लोग ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ देख के बोलते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अमानुल्लाह साहब के बारे में ये फेमस है कि वो बोलते थे और लोग उनके बारे में लिखते थे। जो कॉमेडी के अंदर जो नाम किया था वो अमानुल्लाह का नाम, मुनव्वर ज़रीफ और इन लोगों के बाद अमानुल्लाह का नाम आता था, जो इंडिया के अंदर भी था। अफसोसनाक खबर मिली है तो मेरे तो जिस्म से जान निकल गई थी। ग्लासगो में आबाद पाकिस्तानियों ने भी आलमी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया फ़नकार और अदाकार अमानुल्लाह खान की वफ़ात पर अफसोस और गम का इजहार करते हुए उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा है। हमारे नुमाइंदे खालिद वारसी से बात करते हुए उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। अमानुल्लाह साहब का जी बहुत अफसोस है, उन्होंने 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, दिली दुख हुआ है उनकी वफ़ात का। अल्लाह ताला उनकी वाले रहमत जगह दाब फरमाए। बड़ा अफसोस हो जाना जी है खबर सुन के कि बहुत अच्छा फनकार थी, उन्हें पाकिस्तान से बड़ा खुश किया। ज़िंदगी में जहाँ हर तरफ परेशानियाँ हैं तो वही लोग थे जो इनको कुछ देर के लिए बुलाकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते थे। अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तरह स्पेन में भी खौफ फैला रखा है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। गलियों, बाजारों और सड़कों पर आमदोरफ्त मामूल से कम है, जबकि स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है। स्पेन भर में 8 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 410 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तरह स्पेन में भी खौफ फैला रखा है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं। गलियों, बाजारों और सड़कों पर आमदोरफ्त मामूल से कम है। तरसील बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है। स्पेन भर में अब तक 8 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 410 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ 150 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि वेलेंसिया, ला रियोजा और कतालुनिया समेत कई दूर दराज के इलाकों में भी कोरोना के केसेस सामने आए हैं। मैड्रिड में कोरोना के फैलाव के पेश नजर 213 घर या ओल्ड हाउसेज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ओल्ड हाउसेज में 30 से ज्यादा केसेस सामने आए थे, जबकि कतालुनिया ने ताहाल ओल्ड हाउसेज बंद करने से इनकार किया है। हाँ, अलबत्ता बहस ये चल रही है कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने चाहिए या नहीं। वेलेंसिया में होने वाला इंटरनेट फ्रीडम फेस्टिवल मुलतवी कर दिया गया है। बार्सिलोना में चाइनीज न्यू ईयर फेस्टिवल भी मनसूख कर दिया गया था, जबकि फरवरी में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी मुलतवी कर दी गई थी। यूरोपियन यूनियन की हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में स्पेन के वजीर सेहत सिल्वाडोर का कहना था कि स्पेन कोरोना के फैलाव को रोकने की सलाहियत रखता है, मगर इसके बावजूद हमें खदशा है कि आने वाले हफ्तों में स्पेन में मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी सोशल लाइफ जारी रख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाथ बार बार धोएं या एंटीसेप्टिक जेल का इस्तेमाल करें। अमरीकी मुस्लिम कांग्रेसमैन एंड्रे कार्सन ने भारतीय हुकूमत के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत को अक़लियतों के हवाले से रवैया बदलना होगा। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। Well, what we've seen with the peace process is a step. Right now, it's just words. I think the Taliban has a responsibility to have words meet with action. I remain hopeful, but being someone who comes out of law enforcement, always look at the actions before I look at the words. जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर और मंदूब खलील रहमान हाशमी का कहना था कि दुनिया भर में भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और गैर कानूनी शहरियत बिल के हवाले से तशवीश पाई जाती है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। यहाँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
جو کونسل کے ممبران ہیں اور جو کونسل کے ممبران نہیں بھی ہیں وہ اپنی سٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، یو این کی اپنی جو پوری مشینری ہے جس میں اسپیشل ریپورٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم نے اپنی نیشنل سٹیٹمنٹس کے ذریعے جو پاکستان نے مختلف ایجنڈا آئٹمس کے تحت جو ہے اس میں اس کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے، جو ہندوستان کا ایک اصل چہرہ ہے اور جو ظلم و ستم جو ہے اس نے کشمیر میں جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم نے کونسل کو نہ صرف اس کی طرف توجہ دلائی ہے بلکہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کم از کم جو کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشنز نے جو 2 رپورٹس شائع کی ہیں 5 اگست کے جو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات ہیں ہندوستان کے، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو رپورٹنگ پروسیس ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔